Good evening, everyone. Hello. Hi. So, welcome back to our session. Today, we are going to learn about recording settings of Logic Pro X and piano roll settings. Okay. So, today it's very interesting topic plus very informative session it would be. So, let's start with the screen share. Okay. So, can you see my screen, participants? Please Yep, yep, respond in yep. chat box. Okay, nice. Thank you, Chan. So, I'm empty channel project, empty channel strip also. Okay. So before starting, I want to let you know what are the settings we should keep for recording our song or creating any project. So for that, you have to go to Logic Pro X, click on the Logic Pro X, and then go to Preferences. Then you see a lot of options present here. You can go for audio first. Okay, so audio settings are here. So as you can see, I have one USB headphone connected with my system. So I am using right now USB headphone for input and output both. So I have connected my output device and input device to USB audio advanced system. So I have lot of you can say I have lot of audio interface present in my settings. So you also get some these kinds of setting available at your system. So whichever you are using as a audio interface, you can use that setting in this two boxes, output device and input device. And this is IO buffer size, or you can say samples. Okay, I will let you know what is this samples also. I cannot see the chat box right now. Okay, so these are the processing threads, process buffer range, multi-threading, summing, rewire behavior. Okay, so I have to close this also. Okay. So for recording any audio, okay. So for recording any kind of audio, you need to set your output and input device to perfect device which you are using. Like if you are using any audio interface, like right now I'm using USB headphone, which is having a microphone embedded inside in it. But if you have audio interface, okay, audio interface, whether it is for 2 channels, 3 channel, 4 channel, 5 channel, 8 channel. Uh, so if you have audio interface, you know that you have to keep that in mind that your drivers, updated drivers should be installed in your Mac, in your device system, and it should be properly connected through a wire. If whether it is a wire of basically it's a USB or it's a power device, you have to check that the wire is completely connected to your system. And after that you will you if you open your system preferences, so you will get the device name here. Okay, like I'm having a lot of devices right now connected with my system, but right now I'm using USB advanced audio as my output device, and for input also I'm using USB advanced audio device, which is my USB headphone. So if you have audio interface, you have to keep it on that name. After that, open your Logic Pro X and go to your preferences and click on the audio. And you have to set the same setting. You have to set the same setting inside here also. Basically, if you have audio interface, you have to select it on
your audio interface device, and if you are using another kind of USB kind of headphone, you have to set it on USB advanced, or whether whatever you are getting in your settings. Okay, so what is this? I think 128. Okay, I am completely quitting this. I'm opening it from the fresh. Okay, so you get this kind of template while you open your Logic Pro X for the very first time. If you don't kind of temp, you can open it. You can enable it by this section. You can go to preferences, and after that you can go to general. You have to select a startup action. If you are selected on open most recent project, at default it is set on open most recent project, so you have to change it to select a template. You have to change it, select to template, and you can close, and after that you have to quit your Logic Pro X. Then you have to restart your Logic Pro X. Then you will get this kind of template. Yeah, this kind of section. Okay, so what you are going to basically do is you have to create a empty project first. Okay, before creating any kind of project or song, you have to create empty project, and there is a button of detail right here. Okay, Ishan, are you getting a video right now? What did you say? You're getting the video, you are getting my screen right now? Yeah, I can see your Someone screen. video नहीं आ रहा है. I can see your screen. It's available. It's visible. Is it clear right now? It is clear. You can Okay, continue. I think it's problem with the network connection or something. okay, no worries. So so basically you get a setting of empty project right here, and there is a button of details. Drop down menu will open. If you click on it, you will get a lot of options right now, and from here also you have these are also recording settings you have to keep. If you know on which tempo, on how much BPM you are going to work, you can set it at your starting stage. Like I keep it at 90 right now. And if you know the key signature, that is the scale of your project, you can also set at the very beginning of your project. So I keep it today I will keep it at A major. Okay, so time signature, time signature, you know that whether it is for 4 by 4, 3 by 4, 6 by, there are a lot of time signatures are there. Okay, so I keep it on 4 by 4, and then you get a setting of input device and output device. What this means, it basically what will be the input for your project, and what will be the output from where will going to hear the sound. Okay, sound is output, the output sound is output device. Okay, right now I'm using a USB headphone with mic, so I have set USB advanced audio on the both of this setting. Next we have sample rate. This is very important. A lot of people ask me, sir, what is sample rate, and isko kitne pe set karna chahiye, whether we should keep it at 44.1 or 48 kilohertz. So let me know in very simple word, what is sample rate. Okay, basically sample rate is the samples, like how much samples it is your system is recording per second. Okay, it's a rate. जहाँ पे भी रेट लिखा आ जाता है, मतलब इट्स काइंड ऑफ कितना, मतलब हाउ मच amount of samples your machine is recording per second, and it is denoted by kilohertz or hertz. Its basic unit is hertz, so it is measured in frequency, because its basic unit is hertz. Okay, तो hertz की जो frequency की जो basic unit होती है वो hertz होती है. तो ये बहुत इजी है. अगर मैं इसका और एक अगर आपको सैंपल रेट बहुत इजीली समझ नहीं आता है वो, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट इसलिए होता है बिकॉज
ये एक फॉर्मेट की तरह यूज होता है, जैसे वीडियो एडिटर्स जो होते हैं, जो आप बैकग्राउंड स्कोरिंग करते हैं कभी, सो दे यूज अ सैंपल रेट ऑफ 48 किलोहर्ट्ज। एंड इफ अगर आप म्यूजिक बनाते हैं या कुछ जहाँ पे आपको लेटेंसी कम चाहिए होती है, तो वो लोग 44.1 या फिर 48 किलोहर्ट्ज को यूज करते हैं। तो किलोहर्ट्ज इज बेसिकली, किलो इज बेसिकली 1000 इंटू 1000। Hertz means 1 hertz means 1 kilohertz will have 1000 hertz. So this is basically units of frequency. So अगर मैं इसको बहुत ही easy वर्ड्स में आपको बोलूं, अगर आपको ये समझना है कि सैंपल रेट बेसिकली होता क्या है, तो आप अपने स्क्रीन के जो पिक्सल्स होते हैं, मतलब स्क्रीन का जो रिफ्रेश रेट होता है, उसके थ्रू आप इसको कंपेयर कर सकते हैं कि दैट हाउ मैनी टाइम्स, लाइक आप लोगों ने सुना होगा कि आपकी 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट की डिस्प्ले है। लाइक आई एम यूजिंग राइट नाउ 240 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट डिस्प्ले। तो इसमें रिफ्रेश रेट में आपने आजकल मोबाइल्स में भी काफी इजीली सुना होगा 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है डिस्प्ले में, and some mobile are getting 90 hertz of refresh rate in their display. So basically ये है क्या, ये कुछ नहीं है, ये आपका जो प्रोसेसर से पीछे सिस्टम में से आपका जो डिस्प्ले आपको बाहर की तरफ फायर करते हैं, डिस्प्ले से जो स्क्रीन फायर करते हैं, वो पर सेकंड में 90 टाइम्स वो रिफ्रेश हो रही है। मतलब वो उसको चेक करता है कि क्या डिस्प्ले में कुछ चेंज हुआ, कुछ अब चेंज हुआ। तो 120 हर्ट्ज वाले आपको नेचुरली आपको बहुत जो स्क्रीन्स हैं वो बहुत ही ज्यादा आपको स्मूथ लगेंगे और इजी टू यूज होंगे और बहुत ही फ्लूइड की तरह काम करते हैं। जबकि 60 हर्ट्ज के जो आप कन्वेंशनल स्मार्टफोन्स आप लोग यूज करते होंगे, उसमें आपको बहुत ज्यादा लैग लगता होगा या लैग फील करता होगा आफ्टर यूजिंग द 120 हर्ट्ज डिस्प्ले। सो ये भी सैंपल रेट भी क्या है, एक सेकेंड में कितने सैंपल्स पकड़ रहा है। सी कंप्यूटर डजंट नो अबाउट द एनालॉग साउंड्स। कंप्यूटर को सिर्फ एक भाषा समझ आती है, बाइनरी लैंग्वेज, जीरो और वन, यानी सैंपल्स, सैंपल्स ऑफ जीरोस एंड वंस। ओके, तो क्या होता है ना कि जब आप अपना कोई भी माइक्रोफोन ऑडियो इंटरफेस में लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो माइक्रोफोन जनरेट कर रहा होता है, ऑडियो इंटरफेस को दे रहा होता है, वो डिजिटल फॉर्म में, यानी इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी लैंग्वेज, यू कैन से जीरो वन की जो लैंग्वेज होती है उसको चेंज करके यूएसबी के थ्रू आपको सिस्टम को पकड़ाता है। तो सिस्टम उसको कितनी स्पीड से पकड़ रहा है उसको कहते हैं हम सैंपल रेट, कितने रेट पे पकड़ रहा है, एक सेकंड में कितने ज्यादा वो सैंपल्स को कैप्चर्स कर रहा है। जितनी ज्यादा आपके सैंपल रेट कैप्चरिंग होगी, उतनी आपकी ऑडियो क्वालिटी हाई होगी। ये बात आप नोट कर लीजिएगा, जितनी ज्यादा आपका सैंपल रेट होगा, उतना ज्यादा आपका द मोर विल द सैंपल रेट, द मोर विल क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी यू विल गेट। सो अब आप बोलेंगे कि अगर आपको सैंपल रेट इतना आप कहते हैं ऑडियो क्वालिटी हाई होती है, तो हम फिर मेरे पास अभी सबसे हाईएस्ट जो है 192 है सर, आप उसी पे रख लीजिए। तो मैं 192 पे अभी इसलिए नहीं रख सकता बिकॉज 192 जितनी आप सैंपल रेट को इंक्रीज करेंगे, इसके साथ एक ड्रॉबैक भी है सैंपल रेट के साथ, जितना आप अपने सैंपल रेट को इंक्रीज करेंगे, उतना ही आपकी जो लेटेंसी होगी, सिग्नल लेटेंसी, यानी कि प्रोसेसर को जो प्रोसेस करने की लेटेंसी होगी, वो प्रोसेसर पे लोड पड़ेगा एक तो, और दूसरी बात लेटेंसी जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। मतलब आप कुछ भी यहाँ से कीबोर्ड पे अपने कुछ प्ले करोगे, तो आपको जो कंप्यूटर से प्रोसेस होके जो साउंड आएगी वो कुछ सेकंड बाद आएगी, थोड़ी देर आपको बाद आएगी, इतनी जल्दी नहीं मिलेगी। तो ये सैंपल रेट का इशू था, सैंपल रेट का टॉपिक था, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट वी हैव फ्रेम रेट। इन द वेरी सेम वे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 120 हर्ट्ज और 90 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज में क्या फर्क होता है, स्क्रीन रिफ्रेश रेट मोबाइल्स में भी आ गए हैं आजकल, तो ये सेम उसी तरीके से फ्रेम रेट है। नेक्स्ट हम चलते हैं साउंड फॉर्मेट। सी साउंड फॉर्मेट काफी तरीके के होते हैं, LCRS होता है, 2.1 होता है, 4.1 होता है, 5.1, 7.1। 7.1 सबने सुना होगा, आई थिंक, प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट इफ यू हैव हियर्ड अबाउट दिस 5.1 सराउंड फॉर्मेट। आप लोगों ने, मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों ने कहाँ सुना होगा, ये आपने सुना होगा थिएटर्स में, और जब आप जाते होगे तो आपको कहीं पता लगता होगा कि अच्छा इस थिएटर में डॉल्बी एटमॉस 7.1 साउंड का सेटअप लगा हुआ है। तो मैं आपको इसको बताना चाहूंगा, व्हाट इज 7.1, व्हाट इज 5.1, व्हाट इज 4.1, व्हाट इज 2.1, व्हाट इज 6.1। सो ये पॉइंट वन ये चलता क्या है, ये होता क्या है बेसिकली। तो ये आप लोग
को मैं बताता हूँ। 2.1 आप यूजुअली आपके कई लोगों के घर में बहुत इजीली अवेलेबल होगा। जैसे आपने कई इंटेक्स के पीसी स्पीकर खरीदे, तो उसमें आप देखते होंगे ये दो आपको छोटे छोटे स्पीकर दे दिए जाते हैं और एक आपको हाथ में पकड़ा दिया जाता है सब वूफर, जिसमें से बूम 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 बेस की आवाज आती है। तो वो जो बूम बूम वाला है वो है आपका इसमें 0.1, एंड जो 2 जो है वो है आपके जो दो छोटे छोटे स्पीकर हैं। ठीक है, तो 2.1 की कॉन्फ़िगरेशन ये होती है कि दोस लेफ्ट एंड राइट एंड वन। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप 4.1 चलेंगे तो उसमें आपको चार छोटे छोटे स्पीकर दे दिए जाते हैं। इसी तरह से अगर आप 5.1 चलेंगे तो आपको पांच छोटे छोटे स्पीकर दे दिए जाते हैं प्लस एक बेस दे दिया जाता है, जिससे आपका एक पूरा कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होता है। अब आप बोलेंगे पांच स्पीकर दे दिए हैं तो फिर इसको करे क्या, इसका पांच का दो से भी वही आवाज आती है। हाँ, पांच से भी वही। क्या होता है ना, पांच में हम एक कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं LCRS। LCRS मीन्स लेफ्ट सेंटर राइट। ओके, लेफ्ट सेंटर राइट, रियर लेफ्ट रियर राइट। ओके, सो ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन होती है 5.1 की। लेफ्ट, अब आपने अपने माइंड में आप इसको सोच सकते हो। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, जस्ट आप सोच लीजिए आप किसी कॉन्फ़िगरेशन के बिल्कुल सेंटर में बैठे हैं और आपके लेफ्ट में एक स्पीकर है, सेंटर में एक स्पीकर है, राइट में एक स्पीकर है। ओके, आपके सामने बिल्कुल सामने से जो एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन से एक साउंड फायर कर रहे हैं तीन तीन छोटे छोटे स्पीकर्स, और आपके एक बैक में स्पीकर है, आपके जस्ट पीछे एक बैक में आपके एक स्पीकर है जो कि रियर राइट है और एक और रियर लेफ्ट है। तो पीछे भी ऐसे दो आपके स्पीकर्स हैं। तो ये अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लगा के बैठ जाते हैं और 1.1 में आपके पास सब वूफर भी है जिसको आप कहते हैं, अगर आप इस कॉन्फ़िगरेशन में बैठते हैं तो वो कॉन्फ़िगरेशन 5.1 कहलाती है। ओके, सो ऐसे ऐसे धीरे धीरे स्पीकर्स बढ़ते रहते हैं। पर इसका काम क्या है, इसका काम मैं बताता हूँ। इसके अंदर ना आपको इसका यूज ऐसे होता है। सर SKP शानू आपने पूछा है, कैन वी यूज लॉजिक प्रो फॉर मूवी final mixing output to surround and sir, I will take the question answer session in the very last of in the last 10 minutes, so write down your doubts and हम क्लास के लास्ट के 10 to 15 मिनट्स में हम सारे डाउट्स लेंगे। ओके, सॉरी फॉर दैट। आगे चलता हूँ मैं। 5.1 में आपका क्या होता है ना कि आपके हर चैनल को आप कुछ कुछ साउंड्स असाइन करा सकते हो। जस्ट आप मान लो कहीं आप थिएटर में बैठे हो और आपके सामने कुछ स्क्रीन पे कुछ चल रहा है, तो आपने कई बार सुना होगा आपके बिल्कुल लेफ्ट से गिटार बज रहा है, और अगर आपने अभी नहीं नोटिस करा तो प्लीज इसको थोड़ा आप यूज कर लेना, उसमें मैं आपको बताता हूँ। सो आप लेफ्ट और जो राइट, कई बार आप क्या होता है कि लेफ्ट से आपका जो साउंड आ रही होती है, आपके राइट से जो है वो कुछ स्ट्रिंग्स आ रही होती हैं। तो ये क्या होता है ना, जब मिक्स होते हैं सॉन्ग्स तो उसको सॉन्ग्स को हम लोग चैनल्स असाइन कर देते हैं। लेफ्ट चैनल की गिटार जो है वो पूरा लेफ्ट चैनल से ही आएगा, और आपका जो स्ट्रिंग्स हैं वो आपकी सिर्फ और सिर्फ राइट चैनल से आएंगी, और राइट चैनल से होते हुए मतलब उनको आप पैन भी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपके आसपास क्या कहते हैं, एक एटमॉस्फेयर बना देते हैं, आपको ऐसा फील कराते हैं कि आप एक्चुअल में वहां उसी सिनेरियो में बैठे हुए हो। ठीक है, सो आगे चलते हैं। आपको मैंने ऑलमोस्ट रिकॉर्डिंग जो सेटिंग करनी होती है, बेसिक जो सेटिंग्स करनी होती हैं, वो मैंने आपको बताई दी हैं। और इसके आगे अब हम चलते हैं, इसको एक एम्प्टी चैनल प्रोजेक्ट क्रिएट कराते हैं। ओके, सैंपल रेट के साथ सैंपल रेट के साथ साथ आपका आपने ऐसे कुछ कुछ टर्म्स आपने सैंपल वाले कुछ और भी सुने होंगे। जैसे आपने सुना होगा कि व्हाट इज बिट डेप्थ, और व्हाट इज बफर साइज, और यू कैन से बफर लेंथ। ओके, सो ये सब चीजें आपने कहीं ना कहीं सुनी होंगी और आपको पता नहीं होगा पर होता क्या है। व्हाट इज बिट डेप्थ, व्हाट इज सैंपल रेट, एंड व्हाट इज दैट इज सैंपल डेप्थ, व्हाट इज बफर लेंथ, व्हाट इज बफर साइज। तो इसका मैं आपको बता देता हूँ। जो बिट डेप्थ होता है ना, बिट डेप्थ इज बेसिकली इट इज अ नंबर ऑफ बिट्स कैप्चर ईच सैंपल पर सेकेंड।
सैंपल आपको पता है व्हाट इज सैंपल? सैंपल इज बेसिकली number of time the audio is captured per second, means how much samples are your system is capturing per second. And जो बिट डेप्थ होता है, बिट डेप्थ को आप कह लीजिए, बिट बिट जहां पे भी आ जाता है, जहां पे भी आप बिट और बेसिकली क्या कहते हैं, बिट या फिर किलो बिट्स जहां पे भी आ जाता है, तो दैट इज रेफर टू स्टोरेज, स्टोरेज ऑफ योर हार्ड ड्राइव। कंप्यूटर हमेशा कुछ भी जब स्टोर करता है तो बिट डेप्थ जो आता है वो आपका हमेशा एक काइंड ऑफ स्टोरेज के रिलेटेड ही आता है। तो बिट्स जो होते हैं वो कितने सैंपल्स आपका सिस्टम कैप्चर कर रहा है इस सेकंड में, वो होता है। जैसे आपने किलो बिट्स पर सेकंड आपने कई बार सुना होगा कि जो आपका MP3 है वो 196 kbps पे है, किलो बिट्स पर सेकंड, ठीक है। और आपने कभी कभार ये भी सुना होगा कि बेसिकली हमारा जो वेव है, अच्छा वेव में भी बफर साइज होते हैं, बफर लेंथ होती हैं, अलग अलग काइंड ऑफ चीजें होती हैं। आपके बिट डेप्थ जो होता है वो आपका हो जाता है किलो बाइट्स, किलो बिट्स पर सेकंड, kbps। यानी आपने सुना होगा 120 kbps का MP3 है, डाउनलोड करना है। कई बार आप ऑनलाइन डाउनलोड करते होंगे तो आपको आपने किसी ने ये देखा होगा 190 kbps पे डाउनलोड करना है, या 242 basically it is the amount of time allowed for your computer to process the audio for your sound card or audio interface, okay। Basically it is a time amount of time allowed, मतलब कितना आपको लेटेंसी जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसको मैं आपको बता रहा था कि जैसे आप 148 पे रखते हैं या फिर 192 किलोहर्ट्ज पे रखते हैं, तो बेसिकली its kind of buffer size is basically a latency, how much latency will be provided to you while processing the audio of your sound card, or you can say the samples which are processing by your system. So buffer length and buffer size, I think they are the same. So नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ये तीन चीजें हमेशा आप लोगों को सबको याद रखनी है, बफर साइज, सैंपल रेट एंड सैंपल डेप्थ, जिसको आप बिट डेप्थ भी बोल सकते हो, और बफर साइज को आप बफर लेंथ भी बोल सकते हो। हाँ, और अगर मैं आपको ये कहूँ कि बफर साइज अच्छा मतलब कितना रहता है, मतलब एक गुड बफर साइज और गुड सैंपल रेट कितना सही रहता है, अगर आप मुझसे ये चीज पूछेंगे तो आप सैंपल रेट जो होता है, अगर आप म्यूजिशियन हैं, आप सिर्फ म्यूजिक प्ले कर रहे हैं, तो आप उसको 44.1 ले सकते हो। अगर आपके सिस्टम बहुत स्ट्रांग नहीं है, बहुत पावरफुल नहीं है, और आपके पास ऑडियो इंटरफेस वगैरह ये सब चीजें एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जो काम करती हैं, बेसिकली वो चीजें नहीं है अगर आपके पास, इफ यू डोंट हैव एनी ऑडियो इंटरफेस और इफ यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ पावरफुल मशीन, then you should keep your sample rate at 44.1. Otherwise, if you have a very powerful machine and you have a sample audio interface, a very good audio interface, then you can keep it at 48 kilohertz of sample rate, which is very good enough for video editing part also, and for music production parts also, okay। एंड बिट डेप्थ जो आप कह रहे हैं, वो हर एक चीज की बफर लेंथ जो आप कह रहे हैं, ये चीजें जो हैं, बफर साइज जो हैं, ये आपके हर एक फॉर्मेट के साथ आपके चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब जैसे kbps में आपके बिट डेप्थ जो होती है 190, 256, 128, और यू कैन कीप इट एट 360। तो अगर बेस्ट मैं कहूँगा तो MP3 बेसिकली निकाले ही इसलिए जाते हैं ताकि कम स्टोरेज यूज हो। तो अगर आपको ठीक ठाक क्वालिटी चाहिए तो आप 190 किलो हर्ट्ज तक चले जाइए, kbps, किलो बिट्स पर सेकंड। अदरवाइज यू शुड, अगर आपको बहुत ही कंप्रेस ऑडियो चाहिए और आपको बहुत ही मतलब कंप्रेस फॉर्म में और लेस
स्टोरेज ऑक्यूपाइंग हो तो आप 128 से नीचे मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता, अदरवाइज यू विल लूज द क्वालिटी ऑफ योर ऑडियो ट्रैक। ओके, सो अगर आप वेव वेव कभी निकालते हैं तो वेव के लिए मैं सबसे नीचे कहूंगा 16 बिट, और अगर आप वेव को 24 बिट में निकालोगे तो दैट विल बी ग्रेट। उसके अंदर आपको ऑडियो का जो क्वालिटी है वो आपको बहुत स्ट्रांग मिलेगा। दीप सावे इज आस्किंग व्हाट इज द सैम्पलिंग रीसैम्पलिंग क्वालिटी and what is playback tracking? Deep Save, please get it noted. I will discuss about this in the very last 10 minutes in our question and answer session. Okay, so please note it down. I will discuss it. Okay, so next we have I think if you have any doubt in this, in all this, if you have any kind of doubt, please let me know in the chat box right now. If this section is clear, this the section of sample rate and sample depth and buffer size and this one bit depth, अगर आपको ये सब क्लियर है एकदम सारे सारे सब कुछ आपको क्लियर है तो प्लीज लेट मी नो, else I will move forward. Okay, very nice. So इसके अलावा भी काफी कुछ ऑडियो के आपके कुछ सेटिंग्स होती हैं, जैसे आपकी कुछ रिकॉर्डिंग डिले है, रिजल्टिंग लेटेंसी, जिसका आप देखिए आपका बफर साइज ये आ गया सामने, बफर साइज, और यू कैन से buffer length. Okay, so basically this is the resulting latency which I am getting right now. Okay, I am getting a 4.7 millisecond of latency in output right now. So आपके आप में से कईयों का ये क्वेश्चन भी होता है कि सर कितना लेटेंसी आपकी होनी चाहिए, मतलब कितनी लेटेंसी आपकी होनी चाहिए, मतलब कितनी लेटेंसी हमारी रहनी चाहिए, इसके इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। सो कम से कम जो आप अचीव करोगे वो तो बहुत ही बेस्ट होगा आपके लिए, लेकिन कितने लेवल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ रिजल्टिंग लेटेंसी जो होती है, रिजल्टिंग लेटेंसी मींस लेटेंसी ऑफ इनपुट प्लस लेटेंसी ऑफ आउटपुट शुड नॉट बी मोर देन 20 मिली सेकेंड्स। ठीक है, इसमें अब देखो कुछ भी हो सकता है, आपकी आउटपुट की लेटेंसी कम हो सकती है, इनपुट की ज्यादा हो सकती है। जैसे मान लीजिए आपकी इनपुट की लेटेंसी जो आ रही है वो आ रही है 12 मिली सेकेंड एंड आउटपुट की आ रही है 8 मिली सेकेंड। अगर आप इस दोनों को टोटल करते हो 12 plus 8 is equals to 20. So if you are getting a resulting output latency as 20 milliseconds, so you will not notice any kind of latency from your ears. अगर ये 20 से 21, 22, 23 जाती है तो you will feel some kind of latency while paying. और अगर ये कम रहती है इससे, और आप पूछेंगे लेटेंसी कम कैसे होती है, ये भी बहुत बड़ा इशू है। तो लेटेंसी हमेशा बफर लेंथ से कम होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अमाउंट ऑफ लेटेंसी इट्स प्रोवाइडेड बाय द सैंपल्स। अगर आप ज्यादा सैंपल्स एक सेकंड में प्रोसेस करवाएंगे तो लेटेंसी इंक्रीज होगी, और अगर बहुत कम करवाएंगे तो लेटेंसी डिक्रीज होगी। तो अगर जैसे मैंने 64 करी तो आप स्क्रीन पे सामने देख पा रहे होंगे कि 3.4 ms की हो गई। बट मैं 364 पे क्यों नहीं करता फिर, या 32 पे क्यों नहीं करता? बिकॉज मेरे को ऑडियो की क्वालिटी भी मेंटेन करनी है। तो मेरे को अभी जो 128 पे जो आउटपुट रिजल्टिंग लेटेंसी मिल रही है जो कि 10.4 है, ये मेरे को प्रॉपर मिल रही है। इससे ज्यादा मेरे को मैं इससे इंक्रीज ही कर सकता हूँ, बल्कि मैं 256 पे जा सकता हूँ या 5.2 पे जा सकता हूँ। देखिए 5.1 पे जाते साथ ही मेरी रिजल्टिंग लेटेंसी जो होती है वो आपकी 26.4 हो जाती है। बट आप इसको 256 करते हो तो 15.7 आ जाती है, जो कि रिजल्टिंग लेटेंसी मैंने आपको बताया कि 20 से कम होनी चाहिए। ओके, तो 20 से कम जो भी आपकी वैल्यू रहेगी उसमें आपको लेटेंसी प्लेइंग के वक्त, या कुछ भी आप प्ले करते हो या डब करते हो, रिकॉर्ड वोकल रिकॉर्ड करते हो, तो आपको जो होगा वो बेटर फील करेगा। ठीक है, और अभी फिलहाल के लिए मैं 128 कर लेता हूँ, बिकॉज मैं ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहता अपने सिस्टम को इतना। तो 10.4 पे भी मेरे को जो ऑडियो क्वालिटी मिलती है, आईओ बफर साइज जो मिलता है, इनपुट आउटपुट बफर साइज, वो मेरे को प्रॉपर मिलता है। तो मैं आई एम very happy to keep it at 128 right now. So I am getting the resulting latency of 10.4.
सो आपको ये ध्यान रखना है, ये भी नोट डाउन कर लीजिए कि आपकी रिजल्टिंग लेटेंसी यानी लेटेंसी ऑफ इनपुट प्लस लेटेंसी ऑफ आउटपुट, इट शुड नॉट बी मोर देन 20 मिली सेकेंड्स। दोनों का जो सम होगा वो आपका 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आई आई वुड रिक्वेस्ट। Hey Akshay, you're not audible. हेलो हेलो। Yep, you're audible now. You're audible ओके, now. मैं कितनी देर से ऑडिबल नहीं था? Last 1 or 2 minutes, I guess. ओके ओके, ठीक है। तो लास्ट मैं आपको यही बता रहा था दैट if you are using a Ableton, FL Studio, Logic Pro X or Cubase or any other kind of DAW, if you are using, they all have the similar options available but in different locations. Right now I am having processing threads, या कुछ हो सकता है कि कुछ DAWs में ऐसे processing threads वगैरह के इतने हाई टेक सॉफ्टवेयर मतलब इतने ज्यादा एडवांस फीचर्स ना हो, लेकिन ये बेसिक जो फीचर्स मैंने अभी आपसे सबसे ऊपर डिस्कस करे, दैट इज रिजल्टिंग लेटेंसी, बफर साइज, इनपुट आउटपुट डिवाइस, ये हर एक जगह अवेलेबल होता है। लेकिन उनकी लोकेशन जरूर चेंज हो सकती है, कहीं और पड़े होंगे वो, कहीं और आप उनको रिट्रीव वहां से यूज कर सकते हैं, बट होगा हर एक पे। अगर आप वहां पे एबेल्टन यूज करते हैं तो वहां पे भी आपको ये सब काम आने वाला है। अगर आप क्यूबेस यूज करते हैं तो वहां पे भी, क्योंकि मैं पहले भी क्यूबेस भी यूज करता था, मैं पहले एबेल्टन भी यूज करता था, एफएल भी यूज करता था, मैं सब छोड़ छाड़ के अब लॉजिक प्रो एक्स पे आया हूँ। तो मेरे को यहाँ पे जो लॉजिक प्रो एक्स में काफी चीजें हैं जो मेरे को बहुत सॉर्टेड लगती हैं। एक तो इसका वर्कफ्लो बहुत ही स्मूथ है, आपको क्रैशेस कभी फील नहीं होते, मतलब काफी क्रैश जो होता है वो इसमें लॉजिक प्रो एक्स में इतना नहीं आता है कभी। तो आप चाहे इसके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे लो इसके सीपीयू को या फिर कुछ भी कर लो, तो लॉजिक प्रो एक्स पे आने का मेरा मेन मोटिव यही था कि हाँ, आई एम गेटिंग लेस फीचर फ्रॉम एफएल स्टूडियो और एबेल्टन, बट नॉट दैट मच, मैं उसमें भी काम चला सकता था। बट द प्रॉब्लम इज मेरे को एबेल्टन में और एफएल में काफी क्रैशेस फेस होते थे। मतलब अगर मैं बहुत ही हैवी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ तो वो अनएक्सपेक्टेडली कभी भी क्विट हो जाता था। लेकिन यहाँ लॉजिक प्रो एक्स में लॉजिक प्रो एक्स इज वेरी स्टेबल राइट नाउ। पता नहीं अब अपडेट्स जो आए हैं, मैं तो अभी 10.4 पॉइंट समथिंग कुछ यूज कर रहा हूँ, 10.4.3, 3.2 सॉरी। बट अभी जो लेटेस्ट अपडेट्स आए हैं 10.5 या 10.6 वाले, 10 पॉइंट समथिंग वाले, तो वो अभी मेरे को नहीं पता उसमें क्या स्टेबिलिटी है क्या नहीं, क्योंकि मैंने यूज नहीं कर रहा। बट इन एट current version I am having a lot of stable DAW right now at my system, in my system. So नेक्स्ट मैं आपसे बात कर रहा था प्रोसेसिंग थ्रेड्स की। प्रोसेसिंग थ्रेड्स जो होते हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ पे इसलिए हैं कि इसमें आपको, जैसे मेरा जो अभी सिस्टम लगा हुआ है उसमें अंदर 8 थ्रेड्स हैं, 8 सिमिलर काइंड्स ऑफ सीपीयू जो हैं, काइंड ऑफ आप कह लो कि चिप्स जो हैं वो एक साथ काम कर रही हैं। तो आई हैव अ 8 थ्रेड सीपीयू, मींस 4 कोर सीपीयू एंड 8 थ्रेड सीपीयू। सो मैं उसके ऊपर उनको सेट कर सकता हूँ इसमें कि आपको राइट नाउ आपको कितने थ्रेड यूज कराने हैं। अगर आप 4 पे सेट करोगे तो आपके सीपीयू में से 4 के सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 2 थ्रेड्स ही यूज होंगे, बाकी सारे आपके थ्रेड नहीं यूज होंगे, वो आपके फ्री पड़े रहेंगे। अगर आप उसमें कुछ मल्टीटास्किंग करते हैं या कुछ चीजें आप यूज करते हैं तो वो आपके काम आ जाती हैं। आगे है प्रोसेस बफर रेंज। और बफर रेंज को आपको जो आप जो बफर कर रहे थे, आप आईओ बफर जो ले रहे थे, आईओ बफर साइज जो ले रहे थे, उसकी रेंज कितनी होनी चाहिए, मतलब प्रोसेसर पे कितना लोड जाना चाहिए। तो उसमें भी मैंने मीडियम रखा हुआ है, लार्ज या स्मॉल अभी मैंने मीडियम पे सेट कर रखा है। तो ये जितने भी नीचे जैसे आप ये समिंग देख रहे हो या फिर रीवायर देख रहे हो, रीवायर आपको पता होगा कि दो डॉज एक साथ कनेक्ट कर देता है रीवायर। तो आप दो डॉज में से एक साथ साउंड आप प्रोड्यूस कर सकते हो। तो ये जितने भी जैसे सॉफ्टवेयर ये जो है कई डॉज में होगा,
कई डॉ में नहीं होगा। लेकिन ये जो ऊपर वाले जो हैं जितने, वो सारे आपको सब में मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो लॉजिक प्रो एक्स के अंदर कुछ ज्यादा ही सेटिंग्स आपकी दे रखी हैं। अभी स्टार्टिंग में अगर आप चाहते हो जनरल सेटिंग्स में ही जाते हो, जनरल सेटिंग्स में ही काफी बहुत सारे एडवांस फीचर्स हैं। और कईयों में क्या पता कुछ लॉजिक प्रो एफ आप लोग लॉजिक प्रो एक्स को आप कुछ लोग चलाते हो तो आपको इतने एडवांस फीचर ना दिखें, तो आप लोग लॉजिक प्रो एक्स पे क्लिक करके प्रेफरेंसेस पे क्लिक करके यहाँ एडवांस टूल्स पे जा सकते हैं। एडवांस टूल्स में सारे आपको ये जो टिक मार्क्स हैं सबको ऑन करना है, एनेबल ऑल कर दीजिएगा। तो आपको जो चीजें अभी आप मेरे सिस्टम पे देख पा रहे हो और अपने सिस्टम पे आपको नहीं दिख रहा है, तो वो आप लोग देख सकते हो। तो अगर मैं रिकॉर्डिंग में जाऊं, तो रिकॉर्डिंग में भी जैसे आप लोग देख सकते हो AIFF और साइकिल ऑफ मर्ज, ये बेसिकली बहुत AIFF तो एक फॉर्मेट हो गया। जैसे एक वेव फॉर्मेट होता है, जैसे आप देख सकते हो कोर ऑडियो फॉर्मेट है CAF, AIFF, और वेव फॉर्मेट है आपका। तो ये फॉर्मेट है कि आपके जो भी आपके ऑडियो ट्रैक्स जो रिकॉर्ड होंगे वो किस फॉर्मेट में बैकग्राउंड पे रिकॉर्ड होंगे। और ये देखो बिट डेप्थ इसकी दे रखी है 24 बिट, ऑलरेडी सेट है। तो इसी तरह से कुछ छोटे छोटे हैं आपके मिडी जो होते हैं, मोस्टली आपके आजकल जो मिडीज आ रहे हैं, तो लेटेस्ट मिडीज आ रहे हैं वो बेसिकली आपके प्लग एंड प्ले होते हैं। उसमें आजकल तो कोई ड्राइवर की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती हैं। अगर आपके सिस्टम ड्राइवर मांगता है तो आप प्लीज इंस्टॉल करिए। आई रिकमेंड यू टू इंस्टॉल द ड्राइवर्स ऑफ योर पर्टिकुलर मिडी while बिफोर यूजिंग दैट मिडी। अदरवाइज आपको ये प्रॉब्लम होगी कि आपका मिडी जो है वो बिहेव अलग तरीके से करेगा। जैसे आपने कुछ पैड प्ले करे तो उसका वो प्रॉपर फीचर आपको नहीं मिल पाएगा। तो ड्राइवर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जरूरी नहीं है कि मीडिया आपने कनेक्ट कर दिया और आपको साउंड आ रही है तो दैट्स इट, आप उसके आगे आपको कुछ और चाहिए ही नहीं होगा। तो मिडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ड्राइवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मिडी के जो आपके ड्राइवर्स होते हैं, ताकि वो जो आप कंपनी ने आपको सेटिंग्स करके दी हैं वो आप उसका पूरा आप उसका बेनिफिट ले पाओ। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव डिस्प्लेज। इसके अंदर भी बहुत सारी एडवांस एडवांस चीज़ें होती हैं। अभी हम फिलहाल बेसिक्स के ऊपर चल रहे हैं। स्कोर्स जो होते हैं, स्कोर का भी मैं अभी आपको पियानो रोल की तरफ बढ़ूंगा तो मैं आपको स्कोर्स के बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट वी हैव अ मूवी। ओके, कई लोग क्या होते हैं, कई लोग इस पे बैकग्राउंड स्कोर करते हैं। बैकग्राउंड्स को मतलब मूवी के ऊपर बैकग्राउंड म्यूजिक को रिकॉर्ड करते हैं, तो उनके लिए सेक्शन बहुत जरूरी है। जैसे कैशे रेजोल्यूशन कितना करना है, जितना रेजोल्यूशन आप ज्यादा करेंगे। ये मूवी का सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जो आपके कंप्यूटर के ग्राफिक कार्ड को स्ट्रेस देगा। अगर आपके सिस्टम्स में अगर आप बैकग्राउंड स्कोरिंग करना चाहते हैं किसी मूवी के ऊपर, पीछे आप अपने म्यूजिक देना चाहते हो, तो I would like to request you all to please install a best graphic card for your system. At least it should be of 4 GB in capacity of in memory. At least 4 GB minimum is required right now. Okay, so 2 GB से भी आप काम चला सकते हैं, but it should be a DDR5 category of memory. Okay, so ये DDR5 क्या है, DDR3 क्या है, ये बहुत डिफरेंट है चीज़ें। इसको आप थोड़ा रिसर्च करिए, इनका R&D करिए तो आपको समझ आएगा। तो मैं सजेस्ट करता हूँ DDR5 का, अगर आपके पास 2 GB मिनिमम ग्राफिक कार्ड भी है तो आपका काम कर जाएगा। लेकिन आपको उसको ऐसे कैशे रेजोल्यूशन बहुत मीडियम पे रखना पड़ेगा। लाइक मेरे पास 11 GB का ग्राफिक कार्ड है, तो मैं इसके अंदर हाई एंड सेटिंग्स भी कर सकता हूँ, क्योंकि जो मेरा ग्राफिक कार्ड है वो बहुत पावरफुल है। तो मैं कुछ भी उस पर लगा सकता हूँ, कोई भी मूवी के ऊपर बैकग्राउंड स्कोर कर सकता हूँ, जो कि मैंने करा भी है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं ऑटोमेशन। ऑटोमेशन आप लोगों को पता होगा ऑटोमेशन क्या होती है। ऑटोमेशन बेसिकली वाइल जब आपका प्रोजेक्ट मूव कर रहा होता है, तो आप अगर किसी सेटिंग को ऑटोमेट कर देते हो, तो जो पैरामीटर होते हैं वो आपके हर बार उसी तरह से रिएक्ट करते हैं। अगर मान लीजिए मैंने इस वाइल वाइल द माय प्ले एट इज मूविंग और प्लेइंग समथिंग, और अगर मैंने ऑटोमेशन ऑन करके ये सामने जो मेरा कर्सर है इसको मैंने इतना नीचे मूव करके ऊपर कर दिया इन द इंटरवल ऑफ 3 to 5। ओके, तो ये हर बार जितनी बार प्ले हेड उस जगह से जाएगा 3 to 5, वो अपने आप ऊपर से नीचे आएगा। ये पैरामीटर जो होगा वो अपने आप उसको ऑटोमेशन को रिएक्ट करेगा। तो ये ऑटोमेशन आप किसी भी पैरामीटर को कर सकते हो अपने लॉजिक प्रो एक्स में। कोई भी आप, जैसे पैन हो गया और कोई भी आप चीज म्यूट ऑन ऑफ हो गया, कोई भी चीज
जो आप यूज करना चाहें। और ये ऑटोमेशन एक ऐसा एक चीज है जो कि इट्स अ वेरी बेसिक थिंग, एंड ये आपको हर डॉ में मिलेगा ही मिलेगा, चाहे उसको एक्सेस करने का तरीका डिफरेंट हो, लेकिन आपको हर डॉ में मिलेगा ही मिलेगा। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव अ कंट्रोल सरफेस। आपके कई लोगों के पास कंट्रोल सरफेस क्या होती है ना, कई लोगों के पास ये ऑटोमेशन करने के लिए कुछ कंट्रोल सरफेसेस होती हैं। अगर आप में से किसी लोगों के पास कुछ लोगों के पास मिडी कीबोर्ड्स हैं, तो आप उनके ऊपर कुछ नॉब्स, कुछ पैड्स, कुछ फेडर्स देखते होंगे। तो दोज थिंग्स आर नोन एज कंट्रोल सरफेस। और नीचे जो आपका जो पियानो होता है, पूरा ब्लैक एंड व्हाइट कीज जो होती हैं, वो आपका की सरफेस है। ऊपर की जो आपकी जितनी भी पैरामीटर्स जितने आपके दे रखे हैं, नॉब्स दे रखे हैं, फेडर्स दे रखे हैं, पैड्स दे रखे हैं, तो दे आर ओनली द कंट्रोल सरफेस। ओके, नेक्स्ट आप माय इन्फो सेट कर सकते हैं प्रोजेक्ट की। यहाँ पे आप कंपोजर नेम, आर्टिस्ट नेम, एल्बम नेम और प्लेलिस्ट जो भी आप सेट करेंगे, तो इस प्रोजेक्ट में से कुछ भी चीज आपकी जो एक्सपोर्ट जाएगी, उसके अंदर ऑलरेडी आपके ये जो इंफॉर्मेशन होगा वो एम्बेड होके ही जाएगी। ओके, तो आप कई बार देखते होंगे, आप MP3 अपने MP3 सॉन्ग्स आपके अपने मोबाइल में चलाते होंगे, नीचे नीचे छोटा 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 वो मूविंग में आपका सिंगर कौन है, कंपोजर कौन है, वो सब इंफॉर्मेशन आपको शो करती होगी। तो यहीं से जाती हैं, यहीं से आप इसको सेट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने नहीं भी सेट किया है, तो MP3 एक्सपोर्ट करने के बाद भी ऑनलाइन कई ऐसे सॉफ्टवेयर है जिनसे आप उसको सेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वी हैव एडवांस सेक्शन। इसके अंदर कुछ नहीं करना आपने। अगर ये आपके कुछ एडवांस सेक्शन जो आपने मेरे यहाँ पे देखे, वो अगर आपके शो नहीं कर रहे हैं, तो आप इनको ऑन कर दीजिए, तो आपको स्कोर, कंट्रोल सरफेस, मिडी और ये सराउंड ऑडियो, इनके सबके एडवांस सेटिंग्स जो होंगे, एडिशनल सेटिंग्स होंगी, वो आपको पता लग जाएंगी। ओके, सो रिकॉर्डिंग की जो बेसिक सेटिंग्स होती हैं, उनको मैंने आपसे बता दिया है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है, तो प्लीज़ आप मेरे से पूछ लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा, आपको मैं बाद में बता दूंगा। और अब जो मैं नेक्स्ट टॉपिक यूज़ करने जा रहा हूँ, दैट इज़ पियानो रोल एडिटर, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई लोगों के पास मिडी इंस्ट्रूमेंट नहीं होते हैं, कई लोगों के पास पियानो जो मिडी कीबोर्ड होता है वो नहीं होता है, वो बिना उसके प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे। बट कुछ भी प्रोग्राम करोगे, उससे पहले आपको म्यूजिक सेंस तो होनी ही होनी चाहिए। तो पहले मैं कुछ एक बेसिक सा एक मैंने नॉर्मल एक यहाँ पे ट्रैक बना दिया है, एम्प्टी चैनल प्रोजेक्ट बना दिया, और इसके ऊपर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ अपना कोई पियानो सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पियानो सेलेक्ट कर लिया है, और इसके अंदर कुछ मैं मिडी रीजन जो है वो क्रिएट कर देता हूँ। ये मैंने छोटा सा एक मिडी रीजन क्रिएट कर दिया, और इसको मैं स्ट्रेच भी कर लेता हूँ। तो क्या होगा ना, अगर इसको मैं डबल क्लिक करूंगा, इफ आई डबल क्लिक दिस, तो पियानो रोल एडिटर नीचे खुल जाता है, नीचे की साइड। और ये क्या चीज है, ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जिसके पास मिडी कीबोर्ड नहीं है, क्योंकि आप यहीं से भी क्लिक करके कुछ भी प्ले कर सकते हो। ईशान, ईशान, आर यू देयर? Yep, yep. Tell me. Yeah, someone is spamming in the chat section. I don't know why. Okay, I'll remove him. Yeah, please. Yep, I'll take care. They Don't all worry. are time pass peoples. Yeah, I'll just remove him. Give me a second. Okay, let's continue. uh, so मैं लास्ट जो आपको बता रहा था कि जैसे आप डबल क्लिक करेंगे, इसको डबल क्लिक करते हैं, तो आपके पास एक पियानो रोल एडिटर खुल जाता है, जिसमें से आप कुछ भी आप प्ले कर सकते हैं। और अगर आपके पास प्ले करने के लिए कीबोर्ड नहीं है, इफ यू डोंट हैव एनी मिडी कीबोर्ड राइट नाउ एट योर होम, सो यू कैन ड्रॉ। ओके, मेरे पास दो दो बेसिकली मेरे पास दो यहाँ पे एक टूल्स होते हैं। एक होता है प्राइमरी टूल, एक होता है सेकेंडरी टूल। सेकेंडरी टूल को आप कमांड टूल भी बोल सकते हो, क्योंकि ये ट्रिगर ही कमांड दबाने में होता है। इफ आई प्रेस ओनली कमांड, ओके,
if I press command on my system, then only the command tool will be triggered. Okay, so मैंने जैसे ही command दबाया, आप देख पा रहे होंगे कि मैंने पेंसिल जो होगी, पेंसिल ट्रिगर हो गई, और मैंने जैसे ये हटाया इसको तो प्राइमरी टूल जो कि पॉइंटर टूल ऑलरेडी सेट है वो सेट हो गया। ओके, सो मैं अगर मान लीजिए मैंने अभी सी मेजर का जो स्केल ले रखा है उसके ऊपर अगर मैं कुछ बनाना चाहूँ तो मैं कुछ कॉर्ड्स लगा देता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने एक ड्रॉ कर दी, एक कॉर्ड ड्रॉ कर दी, और यहाँ पे दूसरी कॉर्ड ड्रॉ कर दी। तो अगर मैं इसको भी प्ले करूंगा तो यू विल गेट अ कॉर्ड ऑफ सी मेजर। ओके, सो आपने एक एक कॉर्ड बना ली, आप इसका पैटर्न्स भी बना सकते हैं। जैसे आपने सी मेजर की कॉर्ड बना ली तो आप इसके पैटर्न्स भी बना सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। सो अब इन्हीं कॉर्ड पैटर्न से मैं इनको कुछ भी आपका बेसिकली कुछ भी एक पैटर्न, एक प्रॉपर सा पैटर्न बना सकता हूँ। जैसे मैंने इसको शिफ्ट कर दिया और इसको डी माइनर बना दिया। ये मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि इसको कॉपी पेस्ट करना हो तो ऑप्शन दबा के आप अपने माउस पे अगर ड्रैग करेंगे तो कॉपी होता रहेगा। और इसको मैं जी कॉर्ड बना दूंगा अब इस वक्त। और इसके बाद एक और कॉर्ड बना दूंगा एफ। अब हम सुन के देखते हैं इसके अंदर क्या पैटर्न बना है। ठीक है, एक ये मैंने पैटर्न बना दिया, बट इसको मैं सुनना चाहता हूँ अपर ऑक्टेव में। मैंने लोअर ऑक्टेव में बना दिया है, बट इसको मैं अपर ऑक्टेव में, तो मैं इसको कंट्रोल ऑल करूंगा। सबको सेलेक्ट कर लिया मैंने, बहुत आगे चला गया मैं। ठीक है, तो मैंने सबको सेलेक्ट कर रखा है। इसको मैं दबाऊंगा कमांड शिफ्ट प्लस एरो की, ताकि ये ऊपर वाली ऑक्टेव में चला जाए। और सॉरी, ऑप्शन शिफ्ट प्लस एरो की, ताकि ये ऊपर वाली उसमें ऑक्टेव में चला जाए। सी जैसे मैं अब की दबा रहा हूँ, ये ऊपर ऊपर वाली एरो की में चला गया है। सॉर्टेड। सो अब मैं इसको एक एक मैंने पैटर्न बना दिया है, इसी को मैं आगे कॉपी कर दूंगा और कॉपी कर दूंगा। मैं इसमें इस पैटर्न को बनाने बनाने के लिए मैंने कोई अपना मिडी कीबोर्ड जो है या कुछ भी है वो मैंने बिल्कुल यूज नहीं किया। इसको अगर मैं
अगर आप मान लीजिए इसको मैं एक ड्रमर ट्रैक जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है उसके अंदर से अगर मैं एक हिप हॉप बीट लगा दूं यहाँ पे सिर्फ, तो यू कैन लिसन इट कि ये कैसा साउंड कर सकता है। तो अगर मैं इसको ड्रम के जो लूप कह लो या फिर इसका ड्रमर को अगर मैं इसको आगे भी कर दूं और एक सिर्फ बेस का कोई लूप लगा दूं, जो कि लूप्स मेरे पास बहुत सारे लॉजिक ट्रैक्स हैं, आपको पता ही होगा काफ़ी सारे लूप्स अवेलेबल रहते हैं। तो अगर मैं लूप भी लगा दूं यहाँ पे एक बेस का सर्च करके, नाउ ओके। सो बेसिकली आपके पास एक जो छोटा सा एक 3 ट्रैक का आपको विदाउट कोई मिडी कीबोर्ड यूज करके आप बना सकते हो। आफ्टर दैट इफ यू वांट टू इंसर्ट एनी काइंड ऑफ लेयर यू कैन एंटर दैट। सो मैंने एक बहुत ही छोटा सा यहाँ पे बहुत छोटा सा एक म्यूजिक बनाया है without using any kind of MIDI keyboard, with the help of piano roll and with the help of drummer which is already present inside Logic Pro X, and one bass loop from audio section. Okay, so वो कैसा sound कर रहा है आप एक बार सुन लीजिए। सो दिस इज वेरी बेसिक थिंग। आप इसके ऊपर बहुत कुछ कर सकते हैं, आई नो। आप इसके ऊपर बेसिकली सिर्फ इसलिए है कि आप इसमें से कोई लिरिक्स वगैरह लिख सकें, कुछ प्रोड्यूस कर सकें, कुछ कर सकें। सो अगर आप कुछ लिखना चाहते हो, अपना कुछ रेफरेंस बनाना चाहते हो और आपके पास कीबोर्ड नहीं है और ये आपको कीबोर्ड बजाना नहीं आता है अभी, तो आप ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीज़ें करके आप इससे पियानो रोल की हेल्प से चीज़ें ड्रॉ कर करके आप म्यूज़िक अपना क्रिएट कर सकते हैं। So basically, let's start with the question and answer session right now. Ishan, Ishan, Yep. yeah. Let's start with the Q&A session now. Okay, I'll unmute all of them. You Okay. can ask your questions. Yeah, please unmute and ask your question. One by one, please. Anybody is having any doubt, please unmute yourself and ask your question, please. ऐप कौन सा है? This is Logic Pro X. It is only available for Apple. Right now, it's not available for Windows, I think. Excuse me, sir. Yeah, please tell me your name first. Sir, my name is Rohit Maurya. Rohit Maurya, yes. सर लॉजिक प्रो एक्स का कोई छोटा वर्जन होगा विंडोज के लिए? लॉजिक प्रो एक्स के लिए विंडोज के लिए छोटा वर्जन तो नहीं होता है, पर विंडोज में आप उसको अगर चाहें तो, अगर आप कमर्शियल यूजर नहीं हो, मतलब कमर्शियल यूजर इन द सेंस अगर आप स्टूडियो के यूजर नहीं हो, तो आप अपना हैकिंटोश बिल्ड करवा सकते हैं। जी सर। ठीक
ठीक है, तो उसमें आप लॉजिक प्रो एक्स आप चलवा सकते हैं और आई थिंक बहुत इजीली आजकल हैकिंटोशर्स अवेलेबल होते हैं। क्यों हम हैकिंटोश करवाते हैं? क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस जो होती है वो बहुत अच्छी मिल जाती है। और अगर आप एप्पल नहीं खरीद सकते, इफ यू कैन परचेज एप्पल डिवाइस, then I suggest you to please go and purchase the original Apple. Otherwise, if you have a Windows system with you, you can get install the Hackintosh inside there. Okay, Hi, sir. Yeah. hi Akshay. Hello. Rajdeep here. Thanks Hello, for the Rajdeep. session. Yeah. I have actually two questions. First is that I have just joined the meeting after maybe you have completed 15 or 20 minutes. So Oh, is there any possibility that you will upload this full Zoom meeting in the app? Ishan, is there any possibility to have a video Hey recording? guys, currently we are not uploading any videos on YouTube, Okay, okay, so yeah, you'll have to watch it live. Okay. okay. But yeah, Okay. we'll So, try to upload it maybe later. The okay. recording is still there, and if Okay. you need it, just WhatsApp me. I might share you the link. Okay. You can please share if you can share your number or something, then I can. Yeah, WhatsApp. I'll just drop my WhatsApp number. Okay. Thank you so much. And Akshay, Okay. the next Yeah, question the is. second question, please. Yes. Yes, I have recently bought this Logic Pro X and the Mac system, so I am hoping to start doing some work with this. I have one Okay. question that already the Logic Pro X comes with a lot of VSTs library inside, Yeah, it but comes with a 60 minimum 60 GB of library, right, preset library. Yeah. right. So if I want to add other VSTs, then is there a paid VSTs or already free Yeah, there VSTs are a will be lot there? of paid VSTs available. Third-party UST, you can say, is available for Logic Pro X. Like you Okay, can see in my screen. At my screen, yes, you can see AU instruments. These okay, all are the third-party VST instruments. Like I'm using Omnisphere and Cyclop. Let me show you one. That this is one Obscarium. This is not from Logic Pro X, but this is from Sugar Bytes, I think. okay. Yeah, this is a third party VST, and if I show you another kind of instruments, third party instrument which I use in daily basis. So this is a real guitar. Okay. Okay, so there So, are a lot of third party instruments so what available. is the way actually to download this or buy this? Is there any good source from where I can buy these things? Uh, So, there are a lot of source out there who provide you best VSTs. Actually, there is a lot of package. Otherwise, if you don't get any number, then contact me or follow me. I will provide you some numbers so that you can get all these VSTs. okay, okay. Okay. Thank you so much. Okay. Thank you. Hello. Yeah. Hello. Hello. Please. Yeah. See, which like which kind of computer is required for having lot of tracks? Sir, if you want to, basically, if you want to do a heavy programming, heavy music production, then I would like to suggest you to get a Intel system, of course, a Mac one, but it would cost a lot of money. It will cost around 3 to 4 lakhs. But in Yeah. the same, I will suggest you one alternative. Get one Windows system assembled. Contact any person who can any basically one person who can make Hackintosh. Consult him and make one Windows system and get the Hackintosh installed in that device. So, but Okay. only if you are having non-commercial work, okay. Okay. For the commercial studios, I would not suggest any kind of Hackintosh machines because it is not legal right now. Or if you Okay. don't have any contact for people who are having who can make Hackintosh for you, you can contact me. You can follow me on front row, you can contact me on front row. I will provide you some contact for them also. Excuse me, sir. Yeah. See, what about laptops? Like, can we use laptops? Sir, your voice is not clear, Some it's good breaking right laptops. now. I couldn't i7 understand. i7 or i9 processor. Yeah. See, my question is, can we use laptops?
Yeah, okay. For laptops, I would not suggest laptop for heavy usage because they are having a very mobile hardwares. Okay, so I would suggest get a desktop uh, for these kind of works because what you see, mobile basically the smaller the hardware size is, uh, it will produce much more heat and it will not going to provide you that much kind of power. So if you want a powerful device, purchase a desktop and install Apple in that and get it installed from a very you know very Okay, and professional person. Then you can go for hello, heavy project production like section. how much RAM? How Like much 16 RAM? GB and Minimum RAM is right now, it should be like around 8 GB. And if you get 16 GB, then it will be more than sufficient for music production, for heavy music production. I have So 32 GB installed right now. okay. Okay. Thanks. Hello. Excuse me, sir. Hello. Yeah. Please, Hello. please. Hey guys, this is the Hello. last question. We'll have to end the session after that. So Yeah. yeah. Please ask the last question. Sir, actually, I want to ask that which will be your best DAW for my Windows desktop. Best DAW for Windows laptop, it should be, I think there is Sir, no best I DAW. am a You can beginner. use Ableton for starting, Ableton Cubase for starting. And if Sir, you is it free? Is it? I want to ask that a free DAW. free DAW are only I think Audacity is there, but they don't have any very good features installed in that. So I think you should go for the paid ones or purchase from third party persons. So if you don't have any Sir, any contact me. cheaper? I will provide the numbers. Sir, any cheaper DAW? Cheaper DAW, you can go for PreSonus Studio One. It's very identical to Logic Pro X also. No, Miss excuse me, Mansi, sir. this will not going to work on Windows. This is only for Apple right now. Yes, please. Last Excuse me, question. sir. Can I just ask one question? It's the last question. Yeah, please ask your question fast. Yes. See, I am asking that if I am only into non-recording of live instruments and only into the programming of instruments, do I need a sound card, or I can No, manage I without the don't think you need any sound card, but you get a better MIDI or best MIDI out in the market. I don't think you need a sound card until unless you're not going to record any live instruments or microphone you are using. Excuse me, sir. Yeah, Okay, please. thank you. Cool guys, we'll have to end it here. Yeah, please. We have another session. Please lined follow me on Front Row app and ask your questions there. I will answer there for sure. Yeah, Okay. please, we'll have to end it Please. here. Thank you so much, guys. Thank you, Thank you, everyone. everyone. Thank you. You are lovely Thank you, audience. Akshay. Thank you so Thank much. you. Yeah. Thanks. Thank you, sir. Thanks a lot. Thank you.